Hello everybody, welcome to this class by Gyan. I am Piyush, your buddy English language teacher. Guys, for the day, we have got a very basic topic that is subject verb agreement. But yeah, the major thing that comes into the mind is कि जब subject verb की बात होती है, are you that much comfortable in it or not? तो इसी चीज़ को देखकर we're gonna start the preparation for our, of course, so-called defense exams. All these government exams like UPSC, which is conducted into the phases like NDA, CDS, and EPFO, for FCAT, for Air Force, Navy, Army, the State Civil Services, PCS, SSC, and of course the other government exams, right? Guys, keeping all these things in mind, and especially the one that comes from this topic, so I'm gonna start the persuasion of that, right? We're not going to go into the deep details of getting or cramming the rules out into there, right? We need to be very much focused into the main part that comes to be the knowledge, the deep knowledge of the subject. So, if I talk about all those parts जहाँ पर आपको आपकी वो स्लाइड्स दिखती हैं, जहाँ पर आप डेफिनेशंस लर्न करते हैं, you cram the rules over there, those are just petty things because you can find all those things into what books also. But here with me, it is something else. What is it? It is the clear case of discussion with the help of examples not by the phrase but by the practice, right? चलो फिर let's start it out with the slide one. Now guys, you need to be very much focused into this fact कि भाई ये चीज़ें जो होती है ना, टफ नहीं होती है, बहुत easy होती हैं, but you need the perfect platform to remember those, right? So starting it out, I've got a very basic part for you, right? It says a very basic part. For suppose I talk about, we start with Julia as well as her friends dash coming. A very basic part, right? I'll tell you the rule on all those things out also. Now we have Julia as well as her friends dash coming. So you have to fill in the blank with is or are. A way to simple approach. It says Julia as well as her friends dash coming. We know that every time we talk about this, there is a subject, and that subject every time decides a verb. So that is sure short that a subject in English would decide on a verb. If a subject is deciding a verb, it clearly tells upon to the fact. What fact? That verb is typically followed by the subject. कि subject ही verb को decide करता है. तो अगर मैं बोलूँ, let's talk my name only, Piyush Sardana dash teaching English. Now we all know that here in this sentence the subject comes out to be Piyush Sardana. So ये अगर आपका सारा का सारा subject हो गया तो subject के बाद follow क्या होने वाला है? Verb, right? अगर subject के बाद verb follow होने वाला है, it is damn clear from this fact that subject ने verb को decide करना है. That verb can be is also, that verb can be are also. It depends upon to you, right? That is sure short clear to you guys. Now we know that Piyush comes out to be a singular subject, so it comes out to be is. We can say Piyush Sardana is teaching English, where Piyush comes out to be subject followed by a verb is, then we can have an object. So the main phrase comes into the mind is that subject, then we have is verb, then we have is object. Although this part is optional, and of course not into it because we know that object is optional, right? We don't find every time often the word object, right, in a sentence. So ये basic part तो हुआ. Piyush Sardana is teaching English, where Piyush comes out to be subject and दूसरा क्या हो गया? Object, right? Got it? So this is easy. फिर हो जाएगा, right?
सो ये तो बेसिक पार्ट हो गया। हम्म, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी एक और चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखो ये वाला हो गया। अब हम देखेंगे ऊपर वाला कैसे करना है, वो जो ऊपर वाला है। अब उसमें एक लॉजिक और लगाएंगे। क्या? तो वो कह रहा है कि वर्ब तो यहाँ पर लगाना है, ये उससे पहले ये इतना बड़ा सारा क्या है? सर ये इतना बड़ा सारा आपका सब्जेक्ट है। अगर ये सारा का सारा सब्जेक्ट है तो हाउ कैन वी हैव मोर देन वन सब्जेक्ट? लेट्स सपोज हियर आई कैन से जूलिया कम्स आउट टू बी वन एंड वी हैव गॉट फ्रेंड्स एज टू, यानी कि आपके पास दो सब्जेक्ट हो गए हैं। तो अब डिसाइड कौन करेगा? कुछ नहीं करना। अब हम इसमें बेसिक दिमाग लगाएंगे, ठीक है जी। तो वो क्या है, आई विल शो यू। तो हम ये वाला जो है ये हम कर चुके हैं। तो अब हम देखेंगे इसका अगला पार्ट कि जब यहाँ पर फंसेंगे तो हमने कैसे देखना है। और ये फंसने वाली कोई बात नहीं है, बहुत इजी बात है। छोटा सा अप्रोच ध्यान ध्यान रखना है आपको। वो क्या है, आई शो यू जस्ट नाउ। नाउ वी नो दैट वी गॉट मोर देन वन सब्जेक्ट, राइट? सो लाइक इफ वी हैड समथिंग लाइक दिस, जूलिया एंड हर फ्रेंड्स, तो हम चुपचाप आर लगा देते, बिकॉज इंग्लिश में एंड ही एक ऐसा वर्ड है जो वन प्लस वन करता है। अब वन प्लस वन का मतलब यहाँ टू नहीं है, हम तो लिखे रखेंगे बोथ। बोथ मतलब, सर बोथ का मतलब होता है दोनों। अच्छा दोनों आ रहा है कि आ रहे हैं? ऑफ कोर्स इट कम्स आउट टू बी दोनों आ रहे हैं। अगर दोनों आ रहे हैं तो इट इज डैम श्योर अ केस ऑफ प्लूरल एंटिटी। एंड इफ कम्स आउट टू बी द केस ऑफ प्लूरल एंटिटी, इट क्लियरली सेज प्लूरल के लिए तो यू नीड व्हाट, आर। तो श्योर श्योर आंसर कम्स आउट टू बी आर। नाउ आई नो अ क्वेश्चन इज अराइजिंग इन टू योर माइंड अबाउट इट। यू नो दैट अगर ये आर है तो वाई नॉट दिस ऑल्सो आर? बट नो माई फ्रेंड्स, दिस doesn't comes out to be r, it has to be what, is. Now question arises, why did we go with is when we already know that Julia and her friends are of course combined? So guys, for your kind information, there's a role of conjunction into it. A conjunction has got a good role into it because conjunction is which is called a joint into your language, and a joint has to be very much picture perfect, because if there is some leakage out of that joint won't be a perfect joint. Like this is not a perfect joint, and is a perfect joint because it comes out to be both. सो जब ऐसा कुछ आ जाए ना, एंड के अलावा कुछ और मिल जाए, कैसे? जूलिया। अब देखो ऊपर एज वेल एज है, यहाँ पर हम एज वेल एज नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करते अलॉन्ग विद। दिमाग में तो है ना साथ, नहीं। जूलिया अलॉन्ग विद हर फ्रेंड्स डैश कमिंग। अब ये जूलिया हुआ, ये हुआ उसका फ्रेंड्स, साथ में आपके पास अलॉन्ग। एंड तो नहीं आया, एंड आता तो अंधाधुंध क्या लगाते, अंधाधुंध आर यानी कि प्लूरल लगाते। बट यहाँ पर ना एंड नहीं आया, कोई बात नहीं, एंड नहीं आया। दिस टाइम यू हैव इज एज योर आंसर, यानी कि है जूलिया इज गोना डिसाइड दिस। तो जूलिया ने डिसाइड करके क्या लगा दिया, इज, एंड विच बिकम्स योर आंसर। जस्ट हैव अ गेज ओवर इट, एक बार देख लो इसको, हैव अ गेज, देन वी कैन से इट आउट, राइट? I hope this comes out to be way too clear to you. Right. So these are the basic things we need to establish. But यहाँ पर हम ख़त्म नहीं करेंगे इसको, we need to practice it out in order to get that thing out into our mind properly, right?
We're not going into questions and all those things out. Here questions would be definitely by me, right? So I'm gonna show you the questions wala part, because this is gonna have you a proper कन्वर्जेशन रिगार्डिंग द सेम. एंड आपको ध्यान से देखना भी पड़ेगा कि आप किस चीज़ की बात करें. ऐसा नहीं होगा कि आप रटे रटाए की चीज़ें की बात करेंगे, तो बहुत आराम से हो जाएगा. अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसकी प्रैक्टिस को. ठीक है, वी गॉट टू नो दैट कि भाई ये चीज़ आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे बाय सम क्वेश्चंस. सो लेट मी जस्ट शो यू a basic 2-3 questions. Like for suppose we will make a question right now based on this, right? For suppose I say ये मेरी क्लास चल रही है ना, the class including all the questions dash very interesting. It might not be interesting for you guys, but it is way too interesting for me because I've got my special audience with me, right? Chale. Now it says the class including all the questions dash very interesting. Now when we talk about this the class, it comes out to be number one, right? We talk about all the questions. This comes out to be two. Their word including talks about what? It is a joint. What is a joint in our language? Of course, that in basic English it becomes what? Conjunction. Conjunction is something that gives you a junction. Junction means a joint over there, right? Like Yanam's head office is in Chandigarh, and if you had visited Chandigarh, if you had been into Chandigarh, you might know the fact that Chandigarh में there are a lot of roundabouts जिनको चौक बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं. Those roundabouts have got some names, and those names are junction. Junction 11, junction 12. It could be a number following the word junction. So it clearly says junction is a joint. चार राहों को जोड़ने वाला चौराहा, right? So what we have over here is the class including all the questions dash very interesting. So you need to focus onto this fact. We have got this word as class, we've got the questions, but the main part that comes into our mind while doing this should be this joint. Is that joint the word and? If it had been and, अंधाधुंध क्या लगाते? आर लगाते हम. बट यहाँ पर ये एंड नहीं है अब, है ना? फिर आर को तो भूल जाओ, फिर हम आर नहीं लगाएंगे. अब हम क्या देखेंगे? ये वन है, ये टू है, एंड नहीं आया ना, फिर तो क्लास की ही बात हो रही है, तो आंसर आ जाएगा इज. और वही चीज़ अगर मैं ये जो ऊपर वाला सेंटेंस जो मैंने लिखा है इसको मैं रिवर्स कर दूँ, रिवर्स इन द सेंस लाइक दिस, ऑल द क्वेश्चंस, ज़रूरी नहीं इंक्लूडिंग लगाएंगे, हम कुछ और लगाते हैं, टुगेदर with the class dash very interesting. Now we all know that the same part comes out to be here too, कि भाई आपके पास एंड आया कि नहीं आया? सर एंड नहीं आया. टुगेदर विद, वी आर नॉट सपोज टू टॉक अबाउट एनी अदर जॉइंट, इट शुड बी एंड. एंड नहीं है ना, एंड होता तो आर. अब एंड नहीं है तो वन और टू रह गया. ये वन है, ये टू है, द क्लास जो है ना, तो कोई बात नहीं, हम तो ऑल द क्वेश्चंस को देखकर लगाएंगे, तो आंसर क्या आया? आर. तो वी हैव गॉट दिस, ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर विद द क्लास आर वेरी इंटरेस्टिंग. This goes with your answer, right? So yes, I hope you got this thing point of mine, and this shows कि आपने करना क्या है. बहुत सिंपल सा पार्ट है, इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट. बस one thing that is required is called focus. If you've got focus, you can talk about anything out there. But here you need focus, proper focus. Right? So I hope आपने ये नोट कर लिया है ना? समझ भी आ गया होगा आपको कि भाई हाँ करना कैसे है, क्या चीज़ है, कि दिमाग में क्या रखना है. All those things out should be there into your mind properly. So without wasting much time, we're gonna move further into just 30 seconds. You can just gaze over it कि मैंने क्या बताया है. आपको समझ आना चाहिए एक्चुअली में कि हम क्या कर रहे हैं.
Right? Got this thing out? Let us now move further with our approach, of course, because that would show कि हमने जो अभी करा है वो हमें समझ आया है कि नहीं आया है. हाँ, बट उसके बाद इसकी ज़रूरत भी तो पड़ेगी ना रूल वगैरह की, तो अपन रूल भी देखते हैं. लेट मी जस्ट इरेज दिस. राइट. सो देयर वी गो. वन मोर क्वेश्चन. इट सेज, ध्यान से, द वेदर and the lights dash very wonderful. Now you might feel odd over there, like we have got this word, the weather, we've got the word, the lights, दो आए, बीच में आपके पास joint क्या आया, and का आया, right? We've got two things. Now you know that कि सर वेदर को देखकर हम तो इज लगाएंगे. अरे भाई इतनी भी क्या जल्दी है. आई सॉ, वी नो दैट द फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. है द फर्स्ट इंप्रेशन कम्स आउट टू बी एंड. और जो एंड का रोल है वो क्या कहता है, 1+1 को वो बोथ करेगा, यानी इट हैज़ टू बी वॉट, आर. द वेदर and the lights are very wonderful. So this response together comes out to be the answer to the certain same question. तो आपको यही देखना है बेसिकली कि आप कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को, राइट? आई गेस इट इज क्लियर टू अस कि हाँ भी करना कैसे है. अब तो बच्चों वाला पार्ट है हमारे लिए. राइट. सो यस, बढ़ते आगे. What we have over here is right. ठीक है. सो वन मोर क्वेश्चन. सोच समझ के करेंगे इसको. लेट्स सी इफ यू कैन आंसर इट फास्ट और नॉट. फास्ट बट एक्यूरेट, राइट? द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू माइंड इज एक्यूरेसी. और ये क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं लगता करना क्या है, कहाँ गड़बड़ हो जाती है. दिखाऊं फिर क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन सेज, द लेक्चर as well as the PDF and the test dash covered with Piyush. क्यों? कैसे करेंगे इसको? लेक्चर एज वेल एज द PDF एंड द टेस्ट डैश कवर्ड विद पीयूष. सर इतना सिंपल क्वेश्चन दिया और आप कह रहे हैं ऐसे. सर आई गॉट द आंसर्स फ्रॉम यू गाइज. आई नो अबाउट दिस कि आपने आंसर्स दे दिए हैं. जिन्होंने नहीं दिए वो मन में रखे हुए हैं. लेक्चर 1, PDF 2, टेस्ट 3.
अरे भाई अब तो 3 आ गए हैं, अब तो पक्का ही ऐसे, नहीं 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 नहीं। एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली क्या है, वो है जॉइंट्स। सर आपने बोला था एंड आएगा तो आर लगा देंगे, लो जी हमने वो भी ज्वाइन कर दिया इसको देख, राइट। बट वेट, मैंने बोला था 1+1, यानी कि 1 के बाद अगर एंड आए, ये 1 है, इसके बाद एंड आया, एंड तो नहीं आया, इसके बाद तो एज वेल एज आया है। ओ एंड तो नहीं आया, यहाँ तो एज वेल एज आया है। क्लियरली सेज द लेक्चर as well as the PDF and the test are covered with Piyush. So it clearly says one thing out over here, which is this, कि भाई अगर इनको कवर कर दिया तो यहाँ से साफ पता लगा लेक्चर के बाद तो एज वेल एज आया है, यानी कि लेक्चर को देखकर द आंसर शुड बी इज। ध्यान से देखो इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, सो वी गॉट दिस आंसर ओवर देयर। एक्चुअली वी गॉट दिस थिंग कि कैसे करना है। हम्म, अब देखते हैं और क्या करने वाले हैं, राइट। अब हम एक छोटा सा रूल लिखेंगे, लेकिन रूल ना यार हम रट्टे वाला नहीं लिखना, हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, हम अपना रूल बनाएंगे। हमने क्या पढ़ा, लेट अस नेम इट रूल 1, राइट। वी रेड दैट कि भी जब भी दो, दो नहीं, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट भी हों, व्हेन टू, दो या दो से ज़्यादा भी हों, मैं रट्टों पे बिलीव नहीं करता तो मैं आपको रिटर्न रूल तो दूंगा ही नहीं, मैं खुद बनाऊंगा रूल आपके साथ बैठ कर। व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड। अब ये जॉइंट कैसे होते हैं याद है, वो जंक्शन, जंक्शन मतलब कंजंक्शन। यस, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय द कंजंक्शन, इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं एंड। व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय द कंजंक्शन एंड, मैं स्पेसिफिकली एंड की बात कर रहा हूं बिकॉज एंड वाले जॉइंट को ही हम कंसिडर करने वाले हैं। आर जॉइंड बाय द कंजंक्शन एंड देन, अब जो वर्ब फॉलो होता है क्या सीन है उसका, देन द वर्ब फॉलोइंग मस्ट बी, क्या होना चाहिए, ऑफ कोर्स प्लूरल। यानी जब भी ये दोनों चीज़ें एंड से ज्वाइन होंगी, दो हो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो, जब भी वो कंजंक्शन एंड से ज्वाइन होंगे तो वर्ब जो होगा दैट मस्ट बी व्हाट, प्लूरल टर्म्स। If it has to be plural, if it has to be plural, it has to be based on the conjunction and। तो हमने इसकी प्रैक्टिस कैसे की थी, जैसे आप ये लगा दो, राहुल and his parents dash coming, it can be is or are, of course are, यार बात ही and की हो रही है तो आर ही लगाएगा ना, तो साफ पता लग गया आपका जो आंसर है, इट हैज़ टू बी व्हाट, आर। बेसिकली इट इज़ बेस्ड ऑन दैट फैक्ट कि वह किस चीज़ की बात करने वाला है, राइट। तो ये रूल तो हमने खुद बनाया, आपको समझ भी आ गया। यू वांट टू नोट इट, यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, इट विल गेट ईजियर फॉर यू गाइज टू गेट दैट थिंग आउट, राइट, क्विक।
a way to simple approach, but with this approach you can definitely get on to these things because you have made this on your own. आपने खुद बनाया है. राइट और हमें समझ भी आ गया एक्चुअली में बात किसकी हो रही है. अब ना इसका एक छोटा सा पार्ट और भी है, दैट इज़ रूल नंबर 2. लेट अस मेक दैट ऑल्सो. और फिर हम उसको देखेंगे कि कैसे करना है. ऐसे डायरेक्टली नहीं, कुछ रट्टे पार्ट नहीं करेंगे हम देखेंगे उसको करना कैसे. लाइक रूल 2 सेज, रूल नंबर व्हाट हैज़ हैपेंड टू इट. राइट, नाउ वी गोना डू रूल नंबर 2. व्हाट इट सेज, वही दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हों, इफ टू और मोर, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, subjects are joined by the conjunction, are joined by the conjunction. अब and नहीं होना चाहिए, and के अलावा कुछ और. let us called other than and के अलावा कुछ और की बात कर रहा है वो. राइट, सिर्फ and की बात नहीं कर रहा है. इट शुड बी other than and then the verb following, then the verb following must be singular होना चाहिए क्या ना, must be dependent on the subject number 1. That must be dependent on subject number 1. So that is the approach we're looking for. बहुत इजीली अप्रोचेबल है ये, इस वे से कि भाई जब एंड के अलावा कुछ और मिला तो सब्जेक्ट 1 डिसाइड कर रहा है. तो अगर मैं ऐसे बात करूं, कैसे, आई एम गोना टॉक टू यू इन अ सेंटेंस फॉर्मेशन बिकॉज वी हैव टू गिव एन एग्जांपल. लाइक वी हैव द स्टूडेंट्स ओवर हियर, द स्टूडेंट्स, राइट, we can say together with, let us call Piyush Sardana dash studying. अब ये कैसे होगा सर, स्टूडेंट्स भी है और पीयूष सरदाना भी है, लेकिन एंड नहीं है, तो पीयूष सरदाना पर हमारा कोई ध्यान नहीं जाएगा, सारा ध्यान स्टूडेंट्स पर जाएगा, क्योंकि दैट मस्ट बी डिपेंडेंट ऑन सब्जेक्ट नंबर 1. तो यहां पर सब्जेक्ट 1 डिसाइड करेगा. राइट, गॉट दिस थिंग आउट, और हमें समझ भी आ गया है कैसे करना है. These are way too simple things, you need to be focused. Right? So we got these two rules cleared into our mind कि भी हाँ करना कैसे है क्या चीज़, कौन सी चीज़ आप स्टार्ट करते हैं, कौन सी चीज़ का क्या रोल है, ये हर चीज़ आपको देखनी पड़ेगी. Got it?
तभी तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में हमने कैसे करना है. So yes, some practice questions for you guys, right? अब देखो, ये मेरे पास आपके लिए कुछ बहुत ही क्रिस्प पार्ट है, बट मैं नहीं कराऊंगा ऐसे. क्यों? अरे भाई, उससे पहले हमारे को अप्रोच आनी चाहिए, राइट? विल शो यू सम अप्रोच ओवर देयर. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, let us talk about this sentence over here, whether you're able to answer it out or not, right? The sentence says, our behavior our behavior and the culture of other countries dash at वेरिएंस. मतलब सारे अलग अलग, हमारा बिहेवियर और बाकी कंट्रीज़ का जो कल्चर है वो वेरिएंस पे है. नाउ द ऑप्शन कम्स अंडर whether this has to be is or are. Our behavior and the culture of other countries dash at variance. Is or are? Is. नहीं. Are. नहीं. क्या? सोचो. बहुत सिंपल है. कैसे सिंपल है? आई टेल यू. अरे भाई, ये बिहेवियर हुआ 1, कल्चर हुआ 2. ठीक है जी. इज आर. भाई जब ये एंड से जॉइन है तो इट हैज़ टू बी व्हाट? आर. अब बिहेवियर को नहीं देखना. हाँ, अगर मैं ऐसा करूं, आवर बिहेवियर एज वेल एज द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज, तो मैं लगाता इज, बिकॉज एंड नहीं आया तो बिहेवियर को देखकर इज लग जाएगा, राइट? दैट्स द अप्रोच वी आर लुकिंग फॉर. सो वी डन विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट. आपको समझ भी आया होगा ऑफ कोर्स, और आपके लिए बहुत सारा कुछ है. ये देखो, ये देखो, we've got n number of things for you guys, but आपकी प्रैक्टिस से पहले आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए. एक्सट्रीमली सॉरी, राइट? सो यस, we're done with this part over there. So all the best to you guys. We'll meet in the next class. Till then, you must watch this video again to clarify the doubts if you got out, right? And of course, all the doubts are welcome into the comment box. See, defense exams are clearly based on how you deal the English section. अगर आप इंग्लिश सेक्शन अच्छे से डील नहीं करोगे, इट बिकम्स वे टू डिफिकल्ट टू क्लियर दोस एग्जाम्स, राइट? So guys, waiting for your guys. So we'll meet tomorrow, and of course the day of the class we'll keep you updated onto that. Till then, have a good day, enjoy, bye bye.